Hello dear students, how are you? I hope all are fine, safe and healthy. Today I am going to teach you topic our natural resources social studies. Okay, all are ready? Yes, let's begin. Yes, what do you see around you? आप क्या देखते हैं अपने चारों तरफ? Some resources you see. Resources are renewable and non-renewable. Okay, so air, sun, water, houses, roads, lights. Okay, whatever you see, mountains, seas, what are these? All these are our resources. Air, water, all these are resources. Okay, so these are the resource pictures of resources. These are the renewable resources. What is the meaning of renewable energy? Renewable energy produces with natural things like sun से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? सोलर पावर. ओके, सोलर एनर्जी. एयर से विंड एनर्जी. ओके, विंड मिल से करते हैं ना बेटा. ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट renewable energy resources. Okay, and non renewable energy resources कौन सी होती है बेटा? Non renewable means the things which are limited in quantity and we cannot reuse them again once used up. एक बार जिस चीज को हम यूज कर लेते हैं हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते. ओके, सच एज इलेक्ट्रिसिटी में हम एक बार लाइट को यूज कर लेते हैं तो हमें उसके लिए दूसरी आपके जो इलेक्ट्रिक करंट है वो रन होता रहता है और हमारा मीटर जो है लाइट का वो रन करता रहता है. ओके, तो कोल को हम वंस इट यूज्ड अप we cannot reuse it. Okay, हम उसी सेम कोल को reuse नहीं कर सकते, हमें दूसरा कोल लेना पड़ेगा उसके लिए. Okay, like petroleum, पेट्रोल को हम once we used up so we cannot reuse that the same. Okay, we have to fill another petrol in our bike or motorbike or car or etc. whatever vehicle you are using. Okay, so so these are the things which we cannot use again if one time we used. अगर हमने एक बार उनको यूज कर लिया है, once we used up, so we cannot reuse them. So those things are called non-renewable resources. Okay, so these are the non-renewable energy resources. Okay, our natural resources. Nature has given us water, air, soil, minerals, plants, animals and so on. हमें हमारे नेचर ने कितनी सारी चीजें दी हैं. As you can see, water, air. Without air you cannot imagine your life. You can use that again and again. Okay, air जो है हम उसको यूज कर सकते हैं बार बार. हाँ, so this is a renewable resources. Renewable means we can use it again and again. As water also in the form of rainwater we can get it again and again. Okay, and soil we can grow crops again and again. Okay, by adding the manure in the soil. हम soil में manure add करके वापस से crops grow कर सकते हैं. Okay, so these are the examples of natural resources. Plants, animals and so on. These are called the gifts of nature. Such thing, these are given by the God. ये हमको किसने दी हैं? God ने दी हैं. All these are gifts. Okay, so always we must be thankful to God. Okay, and we must use these things wisely. Okay, and carefully. We use these gifts of nature to fulfill our daily needs. और हम इन गिफ्ट्स को जो कि गॉड ने हमको ये गिफ्ट्स दिए हैं नेचर में, तो हम इनको अपनी डेली जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, डेली जो नीड्स हैं, उनको हम इनसे फुलफिल करते हैं. सच एज ब्रीदिंग, ओके, कुकिंग और food items we get always by the plants. Okay, and early humans did not know how to use these gifts of nature. अर्ली ह्यूमंस को बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था, उसको नहीं पता था कि ये गिफ्ट ऑफ नेचर को कैसे यूज किया जाता है. ओके, विथ टाइम
जैसे जैसे टाइम पास होता गया, दे लर्न टू कन्वर्ट these things into useful things to satisfy their needs. वो अपनी नीड्स को, अपनी जो रिक्वायरमेंट थी उनको फुलफिल करने के लिए इन चीजों को कन्वर्ट करना सीखते गए बाय द टाइम. ओके, fresh air, and you can see the solar power. Okay, our natural resources, it was then that this gift of nature became valuable resources for them. जब उनको यूज करना आ गया तो फिर वो उनके यूजफुल हो गए. अब जैसे किसी को लिखना ही नहीं आएगा तो आई एम गिविंग एन एग्जांपल. if some person, if a person do not do not know how to read and how to write, so how that person, तो उसके लिए तो एक वो बुक और पेन जिससे हम लिखते हैं, राइट करते हैं, तो उसके लिए तो पेन यूजफुल है ही नहीं, और बुक भी उसके लिए यूजफुल नहीं, क्योंकि वो उसको ना पढ़ना आता है ना उसको लिखना आता है. तो फिर उसके लिए फिर जब तक किसी को हाँ किसी भी चीज का इस्तेमाल करना नहीं आता है, उसको यूज करना नहीं आता है, तो वो उसके लिए वो चीज क्या बन जाती है, यूजलेस. तो सेम एज अर्ली टाइम्स में जो अर्ली ह्यूमन था उसको इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं पता था, उसको कैसे यूज करते हैं. बाय द टाइम धीरे धीरे उसको स्लोली वो इन चीजों को कन्वर्ट करना, फ्रेश आइटम्स में कन्वर्ट करना सीख गया, और फिर वो उनको यूज करने लगा. ओके, तो फिर वो उसके लिए क्या, ये वैल्यूएबल रिसोर्सेज बन गई. ओके, फॉर एग्जांपल्स, wind is a gift of nature when early humans learned to generate electricity. जब humans ने electricity बनाना सीखा from wind using windmills, and wind became a resource for them. जब humans को पता चल गया कि electricity कैसे बनाई जाती है windmill से, तो वो उसके लिए क्या बन गई, wind एक resource बन गई. ओके, all materials available in our environment which satisfy our needs are called resources. जितना भी मटेरियल हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, whatever you see in the environment which satisfy our needs are called resources. Now a question arises here कि what are resources? Resources क्या होती हैं? So this is the answer. All materials available in our environment which satisfy our requirements with and needs are called resources. उनको क्या कहा जाता है, resources. They are of two types. और ये कितने types की होती हैं? Natural, these resources are of two types. Okay, all natural things such as land, air, water, soil, minerals, forest, and animals are known as natural resources. Things made by humans using natural resources are called human made resources. अब जो natural resources human being ने बनाई है, humans ने उनको बनाया है, प्रिपेयर किया है, such as buildings, roads, machines and electricity, these are the examples and these are made by the humans. That is why these things are called human made resources. Okay, क्या बोलेंगे इनको, what do we say, क्या कहते हैं हम इनको, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ओके, जैसे सोलर पैनल्स है, ये किसने बनाए हैं, ह्यूमंस ने बनाए हैं. तो ह्यूमंस ने बनाए हैं एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो दिस इज अ सोलर पैनल इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. Types of natural resources. Natural resources are of two types: exhaustible resources and inexhaustible resources. Exhaustible resources होती हैं एक बार एग्जॉस्ट होने के बाद हमको दोबारा उनको यूज नहीं कर सकते हैं. दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज मींस क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. वंस वी यूज्ड अप these exhaustible resources, so we cannot reuse them. हम उनको वापस यूज नहीं कर सकते हैं. ओके, and what is the other name of exhaustible resources? Means non-renewable resources. Remember this thing, and you note down in your practice notebook so that you could learn for a long time. Okay, inexhaustible resources क्या होता है, inexhaustible resources are the things which we can use again and again. Okay, जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं. In other words, we can say it renewable resources. Okay, such as air, water, sunlight. Yes, these are the examples of
natural resources. You see the water and sunlight, land, and here water, animals, land surfaces, birds, trees, forest, oil wells, minerals. Okay, you mean these are the minerals and our stones, precious stones. Okay, all coal, all these are our types of resources. Exhaustible resources. Some natural resources such as metals, iron, copper, aluminium, and fuels, coal, petroleum, natural gas are available in a limited quantity. ये जो natural resources हैं, these examples, these natural resources are available in limited quantity. इनकी ज्यादा quantity available नहीं है. कोल भी हमारा limited quantity में है, पेट्रोलियम भी और नेचुरल गैस भी. एक बार हमारा जो गैस सिलेंडर है जो हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं, अगर वो एक बार फिनिश हो जाता है तो हमको दोबारा उसको रिफिल करवाना पड़ता है. ओके, हम सेम तो एज इट इज यूज नहीं कर सकते हैं, हमको उसके लिए रिफिल करना पड़ेगा. सो दीज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी. Once we use of these resources, we cannot create any more of them. एक बार हम इन चीजों को, इन रिसोर्सेज को यूज कर लेते हैं, सच एज पेट्रोलियम, कोल एंड स्टोन्स, इनको हम वापस से यूज नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट क्रिएट एनी मोर ऑफ देम. हम इनसे वापस और क्रिएट नहीं कर सकते हैं. जैसे लैंड से हम क्रॉप्स बार बार ग्रो कर सकते हैं, तो इनसे हम दोबारा कोई चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. एक बार ये फिनिश हो जाती हैं तो हम उसको वापस से यूज नहीं कर सकते. सेम चीज को वो हमें दूसरी उसके लिए लेनी पड़ेगी. ओके, such resources are called exhaustible resources. Okay, यानी कि ये non renewable resources. These resources are examples of non renewable resources. They are also called non renewable resources in other words. Okay, now animals are an inexhaustible resource because they can रिप्रोड्यूस. ये रिप्रोड्यूस करती हैं, ये बर्थ देती हैं. जैसे अपने बर्ड्स हैं वो एग्स देती हैं, तो एग्स हैच हो जाते हैं तो उनके चिकन्स आते हैं, तो उनके जो बेबी बर्ड्स आते हैं. तो इसी तरीके से हाँ, ह्यूमन बीइंग जो होता है तो वो क्या है, inexhaustible resource. All these are the examples of inexhaustible resources. Okay, they are having ability to reproduce more. Okay, but if they are hunted in a large numbers of their natural homes are destroyed, they may become extinct like the passenger pigeon and the dodo. अगर human being इनको hunting करते रहेंगे इन birds को, such as pigeon, dodo or other animals like tigers, okay, तो deer, तो अपने बेनिफिट के लिए अगर ह्यूमन बींग्स इनको किल करते रहेंगे, इनको हंट करते रहेंगे शूट करके, तो फिर इनकी क्वांटिटी क्या है, एक दिन क्या होगा, वो फिनिश हो जाएंगे. तो इसीलिए पीजन और जो डोडो हैं ये एक एक्सटिंक्ट बन सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं अगर इनको ह्यूमन बींग्स कंटिन्यूसली हंटिंग इनकी करती करेंगे. तो इसीलिए दिस इज आवर ड्यूटी to maintain balance in nature. We must protect all these natural birds, all these birds and animals. Okay, thus if animals are not protected, then they may also become an they also become an exhaustible resource. तो क्या बन जाएंगे ये, exhaustible resource बन जाएंगे. What is the meaning of extinct? Write in your practice notebook. आप practice notebook में note कर लीजिए, animals that have died out. Okay, and more words are here. Prevent. What is the meaning of prevent? Means stop. Soil erosion means it is a process. Soil erosion is a process in which the top fertile layer of soil is lost due to heavy rainfall. जब heavy rainfall होता है या storm होता है, heavy मतलब speedily wind होती है, तो ब्लो करती है, तो क्या होता है, जो हमारी जो सॉइल की जो टॉप लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. ओके, रिमूव हो जाती है, तो उसको कहते हैं सॉइल इरोजन. शेल्टर. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेल्टर? अ प्लेस गिविंग टेम्परेरी प्रोटेक्शन फ्रॉम बैड वेदर और डेंजर. शेल्टर हम किसको कहते हैं,
एक लिविंग प्लेस होता है और टेम्परेरी प्रोटेक्शन प्लेस होता है फ्रॉम बैड वेदर और डेंजर। जब हम कहीं रहते हैं जैसे हाउस से फॉर एग्जांपल हाउस, तो अब हाउस में हमने शेल्टर कर लिया, या फिर बर्ड्स ने ट्रीज, अगर ट्रीज में उन्होंने अपना नेस्ट बना लिया तो वो उनका शेल्टर हो गया। अगर ट्रीज को ही कट कर देंगे तो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, उनके हाउस से उनसे जैसे ह्यूमन बीइंग है उसका, तो बर्ड्स भी क्या है वो अपना हाउस को डिस्ट्रॉय हो जाता है उनका, तो किसकी वजह से हो जाता है, ह्यूमन बीइंग्स की वजह से। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेल्टर, अ लिविंग प्लेस, टेम्परेरी प्रोटेक्शन फ्रॉम बैड वेदर एंड और डेंजर। And fertile, what is the meaning of fertile, capable or producing vegetation or crops। fertile होता है capability of producing vegetation, means जो हमारी फूड क्रॉप्स हैं जो फार्मर्स ग्रो करते हैं किसमें, सॉइल के अंदर। तो सॉइल की जो क्वालिटी होती है ना, एबिलिटी टू ग्रो क्रॉप्स, दैट इज कॉल्ड फर्टाइल। अगर सॉइल इनफर्टाइल होती है तो हम उसमें क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो उसको फर्टाइल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मेन्योर ऐड करना पड़ता है। ओके, so fertile means quality to grow crops, okay, capable of producing vegetation or crops. Now next is here you can see these are the resources here, coal, petroleum, natural gas, these are the non renewable resources। ये हमारी कौन सी रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। वंस दे कंजप्टेड, उनका कंजप्शन अगर हो जाता है तो हम उनको वापस से यूज नहीं कर सकते हैं। Okay, so you can see soil, water, biodiversity, forest, और some natural resources do not get exhausted। और कुछ natural resources ऐसी होती हैं कि जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, we can use more than one time, and these are called inexhaustible resources। solar energy, air, water, plants and animals are a few examples। These are the examples of inexhaustible resources। ये means ये these resources are renewable resources, solar energy, air, water, plants and animals। okay, they can be renewed, इनको हम वापस से renew कर सकते हैं। so these are also called renewable resources। exhausted, what is the meaning of exhausted, completely used up। okay, what is the meaning of exhausted, completely used up। clear, yes, and renewable resources can be replaced or used over and over, उनको हम वापस से यूज कर सकते हैं, once again यूज कर सकते हैं। okay, many times we can use as we can। soil, air, water and trees are examples of renewable resources। got it, all must have to learn। okay, सबको ये रिमेम्बर रखना है और आप इसको प्रैक्टिस नोटबुक में नोट कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, वेयर है, जबकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है हम उनको किसी भी चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं इजीली, और कभी भी हम उसको रीयूज नहीं कर सकते हैं। फॉसिल एग्जांपल्स आर fossil fuels such as oil, coal and natural gas। these are the examples of non renewable resources। you can see the examples of non renewable resources, coal, oil and minerals and precious stones, diamond। okay, and renewable resources, waterfalls, sun, windmill, we can use many times again and again, we can use renewable resources again and again। resources can be biodegradable। what is the meaning of biodegradable, which means that it can be decomposed or broken down easily, such as trees, paper, animals or fruits। ये क्या है बेटा, ये biodegradable हैं things, इन ये items क्या हैं, trees, paper, animals और fruits, ये easily अपने डिकम्पोज हो जाते हैं, ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, सॉइल में मिक्सअप हो जाते हैं। ओके, आफ्टर फ्यू डेज। resources can also be non biodegradable। and do you know students, I am just sharing an interesting fact with you कि जो हमारा जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वो डिकम्पोज हो जाता है, वो सॉइल में मिक्स हो जाता है आफ्टर फ्यू डेज, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होता है। ओके, रिमेंबर दिस थिंग।
which resources that can be non biodegradable. अब whereas non biodegradable items जो होते हैं, which means that is it cannot be decomposed, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, सॉइल के अंदर मिक्स नहीं होते हैं और ब्रोकन डाउन नहीं होते हैं इजीली, सच एज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एंड स्टाइरोफोम। ओके, तो ये सॉइल के अंदर मिक्सअप नहीं होते हैं, तो दीज आर थिंग्स आर हार्मफुल फॉर अवर एनवायरमेंट। ओके, yes. You can see the examples, biodegradable items, ये fruit and vegetable peels and fruit waste and vegetable waste, जितना भी फूड आइटम होता है वो सारा सॉइल में मिक्स हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है इजीली सॉइल के अंदर, और बिल्कुल सॉइल की फॉर्म में ही ये बन जाता है, सॉइल की फॉर्म ले लेता है, और पेपर भी मिक्स हो जाता है इजीली सॉइल के अंदर आफ्टर मैनी डेज। ओके, और ये लॉग ऑफ वुड, वुड है, वुड का पीस आप डालेंगे तो वो भी आप देखेंगे कुछ दिन बाद वो सॉइल में सॉइल ही बन जाएगा, सॉइल की फॉर्म ले लेगा, तो दीज थिंग्स इजीली डिकम्पोज। ओके, सो दीज आर नॉट हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट, ये हार्मफुल नहीं होती हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स जो मिक्स नहीं होते हैं हमारी सॉइल के अंदर, these items are called non biodegradable, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं इजीली, सच एज प्लास्टिक बॉटल, ग्लास, ये कैन, पेन, फॉर्क, ये प्लास्टिक आइटम्स है ना जितने भी, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं इजीली। ओके, so these are harmful for environment। Okay, so we must not use these things in large quantity, हमें इन्हें limited quantity में ही यूज करना चाहिए। ओके, exhaustible resources, coal, as you know students, coal is an important source of power। जो कोल होता है, कोल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, कोयला। ओके, तो कोल इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ पावर, इट इज यूज टू कुक, ये खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है विलेजेस में, हीट एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हीट प्रोड्यूस करने के लिए कोल को बर्न किया जाता है एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो पहले स्टीम इंजन चला करते थे एंशिएंट टाइम में और प्रीवियसली, तो उसमें कोल ही यूज होता था। It is also used to run steam engines, yes, and in a factories also। Okay, ये अभी भी रन होता है फैक्ट्रीज में, कोल यूज किया जाता है। Our country has largest reserves of coals, हमारी कंट्री में काफी अच्छा अमाउंट में कोल रिजर्व्स जो हैं अवेलेबल हैं। These reserves are however limited, लेकिन ये लिमिटेड क्वांटिटी है। ओके, ना exhaustible। पेट्रोलियम इज inexhaustible resources, कौन सी होती हैं? पेट्रोलियम इज नोन एज द ब्लैक गोल्ड, इट इज रिफाइंड टू, ये जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होती है बेटा, जैसा एज पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम क्या है बेटा? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ये हम इसको यूज कर लेते हैं तो इसको वापस से हम यूज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें वापस से पेट्रोल डलवाना पड़ता है अपने व्हीकल में। ओके, so this, you know students, this is called black gold। okay, so if the question arises here, do you know which is which material is known as black gold? So you must know the answer, yes, petroleum, note down it in your practice notebook। okay, petroleum is known as the black gold, it is refined to produce petrol and diesel। ये पेट्रोलियम हमको क्रूड फॉर्म में अवेलेबल होता है, फिर ये किसमें? फैक्ट्रीज में जाता है, रिफाइनरी फैक्ट्रीज में, वहां पे इसको रिफाइन किया जाता है और इट चेंजेस इनटू, रिफाइनरी के बाद ये चेंजेस होता है पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन। ओके, ये इन फॉर्म्स में ये चेंज हो जाता है। These are used as fuels in cars, buses, scooters, ships and aeroplanes। इनको व्हीकल्स में यूज किया जाता है, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में यूज किया जाता है। ओके, द पेट्रोलियम रिजर्व्स आर लिमिटेड, पेट्रोलियम जो है, पेट्रोल हमारे पास बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में बचा है अब, सो दे आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन एवरी कंट्री, और हर कंट्री में ये अवेलेबल भी नहीं है, तो इसीलिए वी मस्ट यूज इट सेंसिबली। हमें 1 और 2% के लिए कार को यूज नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ कार को कब यूज करना चाहिए? ओनली व्हेन वी आर गोइंग विद द फैमिली मेंबर्स। ओके, then only we have to use, and for short distances we must use bicycles। okay, so in that way we can conserve petroleum। clear?
So if we will do efforts all together, अगर हम सभी मिलकर efforts करेंगे, so we can conserve all these things. Okay, हम इनको sensibly और wisely use करेंगे तो हम अपने इन चीजों को, इन resources को हम protect कर सकते हैं. Okay. What are inexhaustible resources? Some natural resources do not get exhausted. वो कभी finish नहीं होती हैं. These are called inexhaustible resources. Okay, these are the renewable items. Solar energy, air, water, plants, and animals. These are few examples of renewable resources. They can be renewed. हम एयर में ब्रीदिंग करते हैं तो हम ऑल द टाइम वी कैन ब्रीथ. ओके, and so these are also called renewable resources. These are the examples of renewable resources: water, sunlight, land, okay, animals, soil, birds, forests. All these are examples of renewable resources. Inexhaustible resources, the energy of the sun is called solar energy. जो energy हमें solar से means sun से मिलती है, that is known as with the name solar energy. जो sun से energy produce होती है उसको उससे energy तो उसको क्या कहा जाता है? solar power. क्या कहा जाता है? solar power और solar energy. सोलर पावर, ये सोलर पैनल्स लगा करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और हम इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो सनलाइट है वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है. हम इसको मोर एंड मोर वी कैन यूज इट. ओके, ज्यादा ज्यादा हम इसको यूज कर सकते हैं. अगेन एंड अगेन वी यूज इट. सो वी मस्ट ट्राई टू पुट सोलर पैनल्स ऑन आवर रूफटॉप. हमें अपने रूफटॉप पर सोलर पैनल लगाने चाहिए. ओके, एंड यू मस्ट सजेस्ट टू योर पेरेंट्स. ओके, कि मम्मा पापा प्लीज पुट सोलर पैनल्स ऑन रूफटॉप. इन दैट वे वी कैन कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी which is generated by the water. जो water electricity है बेटा, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम कंजर्व कर सकते हैं. यस, ग्रीन पावर, सोलर एनर्जी, इन चीजों को हमें यूज करना चाहिए. ओके बेटा, बिकॉज दीज आर अवेलेबल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी. ओके, नाउ we must follow 3 R's to protect our environment. हमें अपना एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 R's को फॉलो करना चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 R's टू सेव द एनवायरमेंट? R means reduce, second R means recycle, and third R means reuse. You can see here through the picture: recycle, reduce, reuse. So how can we reduce the products? Reduce means using less of natural resources and avoiding wastage of natural resources. हमें जो हमारे पास जो resources available है, natural resources, उनको हमें कम क्वांटिटी में यूज करना चाहिए और उनके वेस्ट नहीं करना चाहिए. और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके, रिसाइकल, रिसाइकल मीन्स होता है मटेरियल्स लाइक पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स एक्सेट्रा. दीज थिंग्स वी कैन रीयूज. हम इनको रीयूज कर सकते हैं बाय रिसाइकलिंग दीज थिंग्स. ओके, यूज फॉर मेकिंग थिंग्स. कैसे? हाउ? आई एम एक्सप्लेनिंग, जस्ट लिसन. Can again be used for making new things instead of synthesizing or extracting newspaper, plastic, glass or metals. हमारी जो प्लास्टिक बॉटल्स होती है हम उसमें अपने प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. ओके, और भी अपने क्राफ्ट में यूज ले सकते हैं. बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल क्राफ्ट के आइटम्स बनते हैं प्लास्टिक बॉटल से. और न्यूज़पेपर को भी हमें वेस्ट नहीं करना है, इसको भी हम रिसाइकल कर सकते हैं, इससे पेपर बैग्स बना सकते हैं. ओके, रीयूज. तो रीयूज में हम क्या करना है? हमें रीयूज मीन्स होता है यूजिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन. उसको हमें वापस फिर वापस से यूज करना है. दिस इज कॉल्ड रीयूज. लाइक द प्लास्टिक बॉटल इन विच वी बाय जैम्स. अगर जैम बॉटल है, हमने जैम परचेज किया है, पिकल्स अचार हमने पिकल परचेज किया बॉटल को एक्सेट्रा, कैन बी अगेन यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स इन द किचन. हम उसमें किचन आइटम्स रख सकते हैं. We can keep the inside these things to store our spices or pulses. We can keep all in all these things. Okay,
So you can suggest to your mama also all these things. Okay. Yes. Inexhaustible resources. Air is an important natural resource. ये हमारा जो एयर है वो बहुत ही important natural resource है, क्योंकि बिना इसके तो लाइफ ही नहीं है, as you know. Okay, so without air we cannot survive. Life is not possible on the earth. All living things need air to live and to stay alive. And wind is used to generate electricity. Okay, और wind को किस लिए यूज किया जाता है? To generate electricity बनाने के लिए. So water is needed for drinking, washing, cooking, growing crops and many other purposes. तो water में को भी हम किस में use करते हैं? Cooking, cleaning, okay, and watering the plants. And electricity generated from falling water is called hydroelectricity. You know students, जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में, हमारे हाउसेस में रन होती है, जो जो हम जिससे हमारे एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविजन ये सब रन करते हैं, तो दिस इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम, कहाँ से कैसे जनरेट होती है? लिसन नाउ, फॉलिंग वाटर, बहुत ही ग्रेट हाइट से वाटर को फॉल किया जाता है, हाई ग्रेट स्पीड से, तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. हाइड्रो को ग्रीक लैंग्वेज में वाटर कहा जाता है. तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाटर. प्लांट्स गिव अस फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. हमें प्लांट्स क्या क्या देते हैं? जस्ट सी, प्लांट्स गिव अस फूड टू ईट, क्योंकि हम विदाउट फूड वी कैन नॉट सर्वाइव. बिना फूड आइटम्स के भी हम नहीं जिंदा रह सकते हैं. ऑक्सीजन के बिना हम ब्रीथ नहीं कर सकते हैं. सो प्लांट्स आर नेसेसरी, okay, for us to maintain balance in nature. क्योंकि प्लांट्स हमको क्या देती हैं? ऑक्सीजन. वी इनहेल, हम क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन. और व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, और हम ब्रीथ आउट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो जो प्लांट्स के अंदर जो कैपेबिलिटी होती है, वो हमारी जितनी भी ह्यूमन बींग्स जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो ब्रीथ आउट करते हैं, वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ओके. Almost all animals depend upon plants for food. ज्यादातर एनिमल्स किस पर डिपेंडेंट हैं? प्लांट्स पर. ओके, उनको भी फूड आइटम किससे मिलता है? प्लांट्स से. ओके. Trees prevent soil erosion and give shelter to many animals. Trees soil erosion को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, क्योंकि जो उनके रूट्स है ना, तो दीज रूट्स वर्क एज अवर हैंड. जैसे हम अपने हैंड में एक चीज को होल्ड करते हैं और हमारी फिंगर्स हमको सपोर्ट करती है होल्ड करने में, सेम एज ट्रीज रूट्स प्ले सेम रोल. ओके, जो ट्रीज की जो रूट्स होती है वो भी सेम ऐसे ही रोल प्ले करती हैं. उनकी जो रूट्स हैं वो भी हमारी फिंगर के जैसे वर्क करती हैं, वो भी सॉइल को अपने साथ में होल्ड करके रखती हैं. सो दीज स्टॉप trees helpful to prevent, to stop soil erosion, and trees gives shelter to many animals. और ये animals को shelter भी देती हैं, क्योंकि many birds are having their nest or house in their trees. Okay, this is why plants are called green gold. You must remember, why do we call trees green gold? Because green trees give us food items, air to breathe, and prevent soil erosion, give shelter to many animals. This is why plants are called green gold. And you know, trees are very helpful to bring rain. Okay, rainfall होने में भी trees बहुत important role play करते हैं. Okay. Soil is needed to grow plants. Soil हमें क्यों requirement होती है soil की? हमें बेटा soil से हम उसमें plants grow करते हैं. And fertile soil is good for crops. Okay, such as black soil and alluvial soil. We must use natural resources very carefully. Okay, just listen now carefully. You must note down. हमें नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही केयरफुली यूज करना है, बहुत ही वाइजली यूज करना है, सो दैट दे लास्ट लॉन्ग, ताकि हम उन्हें काफी लॉन्ग टाइम तक उसको यूज कर सकें. फॉर एग्जांपल, ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, a renewable natural resource, but if we take out more water from under the ground, then what rain can add. जो हम वाटर, ग्राउंड वाटर हम अपना उसमें निकालते हैं, उसको यूज करते हैं, तो क्या रेनफॉल से उतना वाटर उसके अंदर जाता है, ऐड हो पाता है?
नो, तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें उसे वाइजली यूज करना है, इसीलिए कहा जाता है यूज वाटर वाइजली। ओके, our groundwater reserves will get exhausted। तो अगर हम उसको ज्यादा यूज करेंगे और केयरलेसली यूज करेंगे तो क्या होगा, इससे हमारा वाटर, ग्राउंड वाटर रिजर्व है वो एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए दिस इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वी मस्ट यूज वाटर वाइजली। ओके, प्रॉमिस विद मी? यस, very nice, very good, I'm clapping for you, very good, all are lovely and smart students, they will follow all these rules। okay, this will lead to water shortage, इससे हमारा water shortage हो जाएगा अगर हम उसको wisely use नहीं किया। तो I hope all will use wisely all these things। okay, there are some ways to conserve natural resources। अब आपको ये स्टेप जरूर से फॉलो करने हैं। ओके, प्रॉमिस? वेरी नाइस, नोट डाउन, ये आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। वी मस्ट नॉट पोल्यूट एयर, वाटर एंड सॉइल। वी मस्ट नॉट, हमें क्या नहीं करना है, पोल्यूट, किसको पोल्यूट नहीं करना, किसको गंदा नहीं करना, एयर को, वाटर को एंड सॉइल को। ओके, वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज, और हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज और प्लांट्स ग्रो करने हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं, आप कैसे आप उसको प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेंगे, आप अपने जो पेरेंट्स हैं, अपने फ्रेंड सर्कल है, तो उनके बर्थडेज पे और मैरिज एनिवर्सरीज पे आप क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को गिफ्ट, एज ए गिफ्ट आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और जब आप गिफ्ट प्रेजेंट करेंगे तो जिसको आपने प्रेजेंट दिया है वो भी खुश होगा और वो उसको प्लांट जरूर करेगा अपने हाउस में। ओके, तो इससे क्या होगा, वी आर जस्ट एडिंग अवर एफर्ट्स, हम अपने एफर्ट्स कर रहे हैं टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। ओके बेटा, सो अब वी मस्ट नॉट हंट वाइल्ड एनिमल्स, और हमें कभी भी वाइल्ड एनिमल्स को किल नहीं करना चाहिए। वी मस्ट सेव इलेक्ट्रिसिटी, और हमें इलेक्ट्रिसिटी को वाइजली यूज करना चाहिए, सेव करना चाहिए। से फॉर एग्जांपल आप अपना लैपटॉप या उससे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और आप वॉशरूम गए हैं या किसी भी तरीके से आप बाहर खेलने चले गए और आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑफ कर देना है। ओके, वी मस्ट डेवलप अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और हमें दूसरे सोर्सेज भी एनर्जी के डेवलप करने चाहिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल yet, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज गिवन इन रेड कलर, वो रेड कलर में दिया हुआ है, आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।